Hello, everyone. Fine. So we were discussing about logistic regression. ठीक and in the previous class I already introduced है ना डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन हुआ इसका टॉपिक का एंड व्हाट वी फाउंड कि जो लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे देयर वर ड्रॉबैक्स है ना व्हाट ड्रॉबैक्स इट वाज हैविंग कि सर मॉडल ओवरफिट भी हो सकता है अंडरफिट भी हो सकता है ठीक आपने रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाया उन पे तो कोशिश करी कि आप जो प्रिडिक्शन कर पाए वो बेटर हो ठीक है लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक ऑल्सो जो मुझे लगता है द प्रॉब्लम विच लीनियर रिग्रेशन can't solve even though whatever be the possibilities you can apply over it, that is when your target is discrete in nature, that is the issue which linear regression may face. Because as per the mathematical foundation of linear regression, we seen that the result is given in the form of y bar equal to a x bar plus b, where a and b are the coefficients, and a is your slope and b is your intercept, and x bar and y bar are the mean of x values and the y values. And obviously we do calculate a and b. Okay, so this was the equation of regression line. Okay, and it proved to be produce continuous result. The issue which we understood in case of discrete target, though it is regression, I already told it comes under linear model. Logistic regression comes under linear model. The name logistic regression. Okay, the fact is it's dealing with the discrete values. Okay, so we later on converted this concept in classification. Okay, that means we are having discrete values but not that much. You can have two discrete values like 0 1, so you can say binary classification. Multiple discrete values like 0 1 2 3, something like that, so multi-class classification. Fine. We studied in case of logistic regression we are having sigmoid function है ना, which we call it as logit या sigmoid, ये बोलते हैं उसको. ठीक है, which can be expressed as 1 upon 1 plus e की power minus x. ठीक. And obviously my logistic regression gives me probability. The results which we get here is the probabilistic results. Okay, and later on we convert these probabilities into discrete outcomes. That's what we do. Okay, so all these things, we have studied in the previous class. Assumptions I already told, that what we have to do before using logistic regression, it doesn't follow any kind of normal distribution of data, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, the basics, that means correlation, co-linear, वो तो every model जो है वो follow करता है. That is the same thing it follow. ठीक है. आउटलायर रिमूवल कैन बी वन ऑफ द थिंग, ये आप कर दीजिए. ठीक. फाइन. And these are the reasons why we cannot use linear regression for the classification. Okay, as I told, it gives me the continuous results, so I'm not going to use it. Okay, that's also I explained in the previous class. All right, ये हो गया था. And then I told about log of odds concept. ठीक है, ये बात कही थी आपसे. And these things also, that means equation of a sigmoid and putting the value of b0 plus b1 x equal to 0, in the previous class we have already
डन। ठीक है। तो यहां पर एक थ्रेशोल्ड बना लिया था हमने। ओके। So between 0 to 1.5 is the threshold, which we calculated by that sigmoid function only. है ना? In the previous class, I covered this concept. Okay. And then I talked about the odds and the odd ratio. ठीक है। तो odds में what happened कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - p। सो ऑड्स फॉर सक्सेस, ठीक है, ऑड्स फॉर सक्सेस क्या होगा? तो कहा गया प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी फेलियर हो जाएगा 1 - 0.6, सो प्रोबेबिलिटी ये आ गया। देन ऑड्स फॉर सक्सेस इज p अपॉन 1 - p, एंड ऑड्स फॉर फेलियर विल बी 1 - p अपॉन p। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑड्स। ठीक है। एंड वी कैन टेक अ रेशियो ऑफ दीज, सक्सेस का एंड फेलियर का, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑड्स रेशियो। ओके। ये कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ। दिस इज ऑड्स फॉर्मूला, and we can take a ratio of these, that will be the odds ratio. Okay, that also I told. And this is your logit function. Okay, log of odds. So this is odd, actually it is log of odd, odds नहीं odd। ठीक है। तो odds के फॉर्म odd है, p अपॉन 1 - p के फॉर्म में you can write it। बाकी वो कह रहा है odds कह रहा है। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। तो log ऑफ ऑड्स, ठीक है, ये कह दीजिए लॉग ऑफ ऑड्स। तो p अपॉन 1 - p, लॉग बाहर लगाइए, एंड दिस इज इक्वल टू माई लॉजेट फंक्शन। ठीक है। एंड आई इक्वेटेड दिस थिंग टू y and done the complete derivation. Okay, you have seen this derivation where I calculated the value of p. P is the probability. So in the logistic regression I am getting the probability results only, ये मिलता है मुझे। ठीक है। तो probability निकालने के लिए we have already done this complete derivation. Okay, ये बात खत्म हुआ। And then later on I also discuss about the decision boundary, because now you are saying that it is a classification algorithm. So for classification, we require a boundary so that my classes can be separated. तो separation करना पड़ेगा। तो separation can be done with the help of a line or a margin. Okay, ये कर सकते हैं हम। ठीक है। तो the classification algorithm is all about finding the decision boundary only. So the thing here is, in case of logistic regression, we are trying to classify with the help of a margin like this, or a line, whatever. So this is class A, this is class B. There could be different ways to classify the data points, because it it is not always like the thing that data is linearly separable। ये linearly separable है data, that means with the help of a line you can separate the classes, लेकिन जरूरी नहीं है, it's not mandatory that data is always linearly separable। ये तो easy case है, सबसे easy case। You can have a hard cases also, तो वो अपन एसवीएम के अंदर कवर करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन नेक्स्ट एल्गोरिदम में। व्हाट आर द हार्ड केसेस? तो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन से शुरुआत हुआ है क्लासिफिकेशन, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज रिग्रेशन के लिए अपना बेसिक एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की शुरुआत इससे हुआ है। ठीक, फाइन, ये हो गया। अब क्या होता है, आई आई ये देखिए, ये वाला, ये डिसेंट बाउंड्री बनी है। अब ये डिसेंट बाउंड्री जो बनी हुई है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ओके, दिस इज पॉलिनोमियल इन नेचर। तो ये केस इसलिए हो गया क्योंकि लीनियर, विद द हेल्प ऑफ लीनियर, है ना, या लाइन से आई कांट सेपरेट दीज पॉइंट। सो देयर कुड बी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहां आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसके लिए मुझे आई नीड टू टेक आउट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फंक्शंस आई नीड टू कंसिडर टू परफॉर्म द क्लासिफिकेशन, दैट विल सी अहेड। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड आई टॉक्ड अबाउट द कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो। ओके, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ बिकॉज वी हैव टू डू सम मैथ्स। कॉस्ट फंक्शन, सो क्या हुआ, every algorithm is having a cost function। ठीक। So in case of linear regression, you have seen the cost function is your yp minus y का square का summation divided by n। That was the cost function in case of linear regression। But here in this case you are having logistic regression, and logistic regression is assumed to be a classification algorithm, not a
प्रिडिक्टिव अल्गोरिदम इन केस ऑफ लाइक रिग्रेशन में जो होता है वो नहीं है, क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन जो कि लीनियर का नहीं है, लीनियर नहीं है। सो व्हाट कुड बी द कॉस्ट फंक्शन हियर? तो मेरे मुझे थोड़ा सा आई नीड टू गो वाया बेसिक्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड वाया बेसिक्स। आपने कहा सर क्लासिफिकेशन है, ठीक, क्लासिफिकेशन। तो एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, यू नीड टू रिफर टू इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी में वी हैव स्टडीड दिस थिंग व्हेन वी आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशंस पी एंड क्यू, और हमने बोला कि पी वाला एक्चुअल है, P1 was the actual and Q1 was predicted. This was the prediction. Okay. And एंट्रोपी की बात हुई थी। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंड दिस डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज बीन कैलकुलेटेड बाय log of what? Log of probability, log of px. दिस इज द एंट्रोपी। ये इंफॉर्मेशन था। मैं जो है px इंटू लॉग ऑफ px कर दूंगा, इसका समीशन कर दूंगा तो ये एंट्रोपी हो जाएगी, px log of px। ओके, p is the probability of happening of an event and then I'm taking log of probability, क्योंकि शनॉन भाई जो थे हमारे, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा था, ही टोल्ड कि इंफॉर्मेशन जो है इट कैन बी क्वांटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइक दिस लॉग ऑफ px, ठीक है, ही टोल्ड, और माइनस साइन लगा के गया था वो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू बी पॉजिटिव। इंफॉर्मेशन कभी नेगेटिव तो होती नहीं। वेन एवर वी गेट सम इंफॉर्मेशन यानी कुछ तो बात है, ठीक। तो माइनस साइन लगा के, लॉग लगा के, ही टोल्ड माइनस लॉग ऑफ px ऑन थ्योरम। एंड when we proceed ahead, then entropy came, and entropy is px log of px, ठीक है, ये कर दिया। और एंट्रोपी के बाद वी स्टडीड क्रॉस एंट्रोपी, जहां पर पी भी था और क्यू भी था, टू डिस्ट्रीब्यूशंस थे। तो क्रॉस एंट्रोपी में हमने बोला था समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, ये बोला था हमने। तो ये बातें हुई, प्रोबेबिलिटी बेस्ड हुई, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी एल्गोरिदम, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी द प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में दे रहा है। जब वो दे रहा है, इफ द रिजल्ट्स आर कमिंग इन प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी ईयर लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो कैसे लगा दें सर? कुछ है नहीं सर, ये द फॉर्मूला विच यू आर सीइंग हियर इन फ्रंट ऑफ क्रॉस एंट्रोपी, दिस इज द ओनली कॉस्ट फंक्शन फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो ये मैं आपको रिफर करवा रहा हूं इंफॉर्मेशन थ्योरी का नोट्स विच वी हैव स्टडीड, ठीक है। व्हाट वी स्टडीड देयर, क्रॉस एंट्रोपी HPQ, measure the expected number of bits to encode X with the distribution P using an encoding scheme targeted for the distribution of Q. ये हमने I already taught in my mathematics and here is the formula. Okay, अब ये जो डेफिनेशन है ना भैया घुमावदार है ये, ठीक है, कि expected number of bits to encode X with distribution P using an encoding scheme targeted for Q. तो ये ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगी ये बातें। तो इसके लिए क्या करा था हमने, व्हाट वी डिड, इसको टेक्निकली वी कैन अंडरस्टैंड टेक्निकली। हाउ टेक्निकली? सी, वी आर हैविंग प्रिडिक्शन क्यू एंड वी आर हैविंग ग्राउंड ट्रूथ यानी एक्चुअल, ग्राउंड ट्रूथ यानी एक्चुअल जो वास्तविकता है, और ये प्रिडिक्शन है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज द रियलिटी एंड वन इज द इल्यूजन। So reality is defined by P and illusion is defined by Q. तो हमने कहा भैया रियलिटी में ऐसा हुआ था, दिस इज द रियलिटी, एंड माय मशीन लर्निंग मॉडल इज गिव मी द प्रिडिक्शन, इल्यूजन देगा वो, प्रिडिक्टेड देगा वो, प्रिडिक्टेड, ओके। तो जो प्रिडिक्शन दे रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि हुआ था उसके क्या चांसेस हैं और नहीं हुआ था उसके क्या चांसेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर यस and what is the probability for no? This is being given by my machine learning model and in reality this thing happened, yes, okay। तो क्रॉस एंट्रोपी जो है ये इन्हीं के बीच की बात है, इन्हीं के बीच की बात। कैसे? ये देखिए, in previous class also and here also when I was teaching,
इंफॉर्मेशन थ्योरी मैंने बोला था, देखिए भाई ये है एक्चुअल, ये ग्राउंड ट्रुथ कि ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, ये एप्पल है, दिस इज एन एप्पल. Okay, so I trained my machine learning model with the images of apple and other fruits also, है ना, वो भी थी. फॉर एग्जाम्पल पीच. अब पीच कैसा दिखता है मेरे को तो पता नहीं क्या होता है ये, ठीक है, ऐसे ही होगा. ठीक है, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, बना दो. तो I trained my machine learning model with these two different classes of fruits. And after training, when I did the prediction, my machine learning model gave the result as okay, 0.8% जो आपने इमेज दिया है फॉर द प्रिडिक्शन, वो 80% अकॉर्डिंग टू मी इट इज एप्पल एंड 20% अकॉर्डिंग टू मी इट इज स्पीच. तो इन्हीं को आप क्या करिए, बोलिए ये मेरा एक्चुअल था और ये मेरा प्रिडिक्टेड है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस एंट्रोपी द फॉर्मूला से समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स. तो पी, पी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, एक्स की. तो ये बोल रहा है भाई या तो एप्पल होगा, तो एप्पल आई एम सेइंग 1, या पीच होगा आई एम सेइंग 0. ठीक है, आई एम सेइंग 0, तो इसको यहां बनाता हूं मैं. ठीक है, लेट्स टॉक हियर. सो जो पी है, जो एक्चुअल है, ठीक है, वो कह रहा है 1 का मतलब एप्पल एंड 0 का मतलब पीच. बट हुआ ये कि हमारा जो क्यू है, क्यू, ये कह रहा है भाई आई कांट गिव 0 and 1 बट आई कैन गिव द प्रोबेबिलिटी. तो ये कह रहा है भाई इन आफ्टर प्रोडिक्शन 80% जो चांसेस थे, आई कैन गिव लाइक दिस, 0.8 एप्पल का है एंड 0.2 पीच का है, ये बोल रहा है वो. ठीक. तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई कैन डू. ठीक. तो आई एम हैविंग समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, ये है. तो पी मुझे पता है, पी ये है या तो 1 और या तो 0. क्यू जो है, लेट अस सपोज क्यू, तो क्यू प्रोबेबिलिटी है. तो एक काम करो भैया, लेट अस सपोज 1 के आने की प्रोबेबिलिटी पी, तो 0 का आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी. अपने आप बात समझ में आ गई. या तो आइदर आई कैन टेक कि पी जो है इट केम 0.8 एंड ऑब्वियसली 1 माइनस 0.8 इज 0.2, ये है. ओके, ऐसा समझ सकते हैं. तो आपको क्रॉस एंट्रोपी निकालना है, क्रॉस एंट्रोपी. सो क्रॉस एंट्रोपी इज समीशन ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स. तो भाई समीशन है ये, समीशन, यानी आपको 1 की भी बात करना पड़ेगी, यू हैव टू टॉक अबाउट 1 एंड यू हैव टू टॉक अबाउट 0 ऑल्सो. फॉर बोथ द रिजल्ट्स यू हैव टू टॉक. सो लेट अस अज्यूम एट द फर्स्ट केस 1 came, so p is 1 dot log of qx. तो भैया जब p 1 है तो q क्या है, p है ना, प्रोबेबिलिटी. 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p. एंड इट्स माइनस, हियर यू हैव टू पुट माइनस, हियर यू हैव टू पुट माइनस. हाँ. अरे अब वो 1 माइनस पी विल बी फॉर, ठीक है, अब माइनस. ठीक है, अब ये 0 है फॉर एग्जाम्पल, 0. तो 0 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी. ये आपका क्रॉस एंट्रोपी बना. ठीक है, अब हुआ ये, लेट्स सी व्हाट दे पुट हियर. ये देखो, ये -1 लॉग ऑफ 0.8. ऑब्वियसली 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 थी, तो करस्पॉन्डिंगली आई नीड टू पुट इट हियर. ओके, इन माय फॉर्मूला, फाइन. एंड देन 0 की कितनी है, 1 माइनस पी, तो ये मैंने यहां रख दिया, ये रहा 0 और ये रही 1 माइनस पी. इसको इससे आसान तरीके में कोई नहीं समझा सकता. और दिस इज द ओनली कॉस्ट फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यही है कॉस्ट फंक्शन. हियर आई एम डूइंग विद बाइनरी क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो एवरी, ओके, एवरी मॉडल सेज दैट आई एम द बेस्ट इन द बाइनरी क्लासिफिकेशन. ठीक. तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट
लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन, एंड यू केम अप विद दिस फॉर्मूला। ये आया था आपको, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला आपको आया था। और आफ्टर सीइंग दिस फॉर्मूला आई गेस नाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम। क्लियर है? यदि y की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली व्हाट इज माय प्रिडिक्शन? लॉग ऑफ एच थीटा, यानी एच थीटा क्या भाई? p, प्रोबेबिलिटी p। और यदि y की वैल्यू 0 है तो व्हाट विल बी माय q? q का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 1 माइनस पी, जो अभी करा है हमने, लॉग ऑफ 1 माइनस पी। सो ये है आपका एच थीटा, तो p, ओके। एंड ये हो गया लॉग ऑफ p, log of p when your y is 1, and this is log of 1 minus p when your y is 0. तो px log of qx। ठीक है, मर्ज कर सकते हैं, मर्ज तो कर ही दिया मैंने। हियर आई डिड मर्ज ओनली, ये मर्जिंग ही तो करा था दोनों को। यही कॉस्ट फंक्शन है फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन ओवरऑल कंबाइंड में। अभी इसने इंडिविजुअल बोला, ठीक है, हियर इंडिविजुअली cos h theta x x comma y when y is equal to 1 and this is equal to when y equal 0। तो ये है, ठीक है। तो आगे अपन बात करें, ये देखिए, ये रहा। तो जरूरी नहीं है कि 0 और 1 हो। 1 आप बोलो सर तो द नेक्स्ट पार्ट इज 0, तो हमेशा इस टर्म को 0 ही कर देगा वो, नहीं भाई, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपके आउटकम्स हमेशा 0 1 होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मेक अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है, वेयर आउटपुट इज y एंड 1 माइनस y, ऐसा करो आप, ठीक है, आउटपुट इज y एंड 1 माइनस y, ठीक है। बाकी ये तो log ऑफ p एंड log ऑफ 1 माइनस p, ये रहा। आई होप दिस मेक्स अ सेंस। मेक अ ग्लोबल फॉर्मूला, ठीक है। सो इफ y इक्वल टू 1, यदि y 1 होगा तो 1 माइनस y वाली टर्म 0 हो जाएगी। आई विल बी ओनली गेटिंग दिस। एंड व्हेन y 0 होगा, व्हेन y 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। आई विल बी गेटिंग दिस। ऐसा कर सकते हैं, ओके, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है यू माइट बी वंडरिंग कि माइनस साइन क्यों है भैया, नेगेटिव क्यों है? तो भाई ये तो हम वी ऑलरेडी स्टडीड इन योर what information theory, because this is an information actually, and probability always lies between 0 and 1, okay, and we are taking the log of the probabilities, the values between 0 and 1, okay, and log 1 is 0 and log 0 is negative infinity, log 0 is negative infinity, ठीक है, ये होता है, बोल रहा है, ठीक है, log 1 0 होता है, और ठीक है, log 0 जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी होती है, ठीक है। सो द वैल्यूज फ्रॉम द कॉस फंक्शन विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव, है ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच का ही वैल्यूज लॉग के अंदर आएगा आपके पास यहां पर रखने के लिए। चेकआउट, प्रोबेबिलिटी है ना अंदर, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटीज है ना। सो इनसाइड लॉग यू ऑलवेज गेट द वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, ये मिलने वाली है आपको, तो लॉग इनका लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द लॉग बिटवीन 0 to 1 एंड दिस विल कम नेगेटिव, ये नेगेटिव ही आएंगी ये, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए बाहर माइनस साइन लगाया है, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, इट्स अ पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो ये केस है। तो 1 0 होता है, लॉग 1 0, और वट एवर बी द वैल्यूज विच आर लेस देन द 1 एंड बिटवीन 0 and 1, दे आर नेगेटिव इन नेचर, एंड लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, ठीक है। सो लीव इट, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। Now we know the cost function of the logistic regression, and how do we are going to minimize? तो यार एरर कम करने हैं भाई, अब एरर का लफड़ा फंस गया सर। कॉस्ट फंक्शन तो पता चल गया सर, अब एरर फेरर का क्या करोगे आप? ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया, ये ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन वहां भी था कॉस्ट फंक्शन, तो उसको डिफरेंशिएट करा था सर। वी डिड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा सर, दैट्स व्हाट वी डिड,
तो सर हियर ऑल्सो डू वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा? ये एक पॉइंट है भाई बात में। ठीक है, तो लेट्स राइट इट वंस अगेन। व्हाट वी गॉट इन द कॉस फंक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो ये है, c इक्वल टू माइनस वाई लॉग ऑफ एच थीटा एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ एच थीटा एक्स माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस एच थीटा एक्स। यह है मेरा कॉस फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ओके, नाउ आई गॉट दिस कॉस्ट फंक्शन एंड द केस इज कि इसको मिनिमाइज करना है सर, कॉस्ट टू एरर कम ही करनी है ना हमें। ओके, दैट्स व्हाट यू। कैसे करें सर डिफरेंशिएट इसको, कहाँ किससे करें डिफरेंशिएशन? क्या होगा डिफरेंशिएशन पता नहीं सर अभी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। बात तो आ गई सामने कि वी हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, करना पड़ेगा एंड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली ग्रेड एंड डिसेंट की बात होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यही करना पड़ता है सर। ठीक है, वही ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है सर, एंड दैट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द पैरामीटर सर, कोएफिशिएंट सर, वो मुझे बताएंगी, उसी से निकलेगा सर। ठीक है, तो भाई मेरे पास जो फंक्शन है वो है वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, एंड एक्स जो है ई की पावर माइनस एक्स नहीं भाई, इसको लिखो वाई, और जो कोएफिशिएंट्स है मेरे पास वो है बी जीरो प्लस बी वन एक्स, ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। तो सर अब तगड़ा खेल चलेगा। अब कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, अब कोई डेरिवेशन नहीं है मेरे पास, बस आई केम टू नो हियर इज जो एच थीटा एक्स बोल रहा है ना, ये मेरा लॉजिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी देने वाला है ना, यही तो प्रोबेबिलिटी देता है ना। पी का फॉर्मूला क्या था, क्या डिराइव कर रहे हो आप? व्हाट यू हैव डिराइव्ड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? यू आर गोइंग टू पुट पी हियर ना भाई। इसी को मैं यदि प्यार से लिख दूं और प्यार से, तो सी इक्वल टू वाई माइनस वाई लॉग पी, और फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बी, माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस पी। यदि आपको लग रहा है सर वो एच थीटा फीटा एक्स वैक्स हटाओ, तो ये लिखो पी लिख दो बस इसको, पी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? ये तुम कैलकुलेट कर चुके हैं ना ऊपर ऑलरेडी। द वैल्यू ऑफ पी इज ये जो दिख रही सामने, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स लिखा है, उसको मैं वाई बोलूंगा, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, यही तो है। एंड कहां से आई थी ये, फ्रॉम वेयर वी अचीव दिस पर्टिकुलर वैल्यू? अरे वो लॉजिट से करा था ना हमने, ऐसे करा था ना। अरे ये y इक्वल टू लॉग ऑफ p अपॉन वन माइनस पी, वो लॉग ऑफ ऑड्स, तो वहीं से तो निकाली थी ये p। कल यस्टरडे ओनली आई परफॉर्म द डेरिवेशन, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, ये था p। ठीक है, ये था। अब क्या करें भाई, तो p की वैल्यू पुटअप करो कॉस फंक्शन में, और क्या करोगे? अच्छा ऐसा डायरेक्टली नहीं, वेट करो। आई एम हैविंग y हियर, ये y, और y क्या है, व्हाट इज y? y इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स, ये है मेरा y इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी काइंडली इंटरप्ट मी एट द सेम टाइम, आई होप यू गाइज आर रिमेंबरिंग व्हाट, मतलब कल जो बताया उसको याद रखते हुए, एंड आई एम प्रोसीडिंग हेड। ठीक है, इफ यू हैव एनी इशू ना यू कैन इंटरप्ट मी, सर दिस स्टेप वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यस्टरडे ओनली वी हैव क्वालिफाइड to calculate the value of p. This is p, probability. And today I already told you about what is cross entropy, and this is my cost function for the logistic regression. ठीक है, तो I need to put the value of p here. Okay, तो क्या करें भाई, क्या करें, रखो चलो, कॉस्ट फंक्शन c इक्वल टू माइनस वाई लॉग ऑफ वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन अपॉन, अरे नहीं, इसको क्या लिखा था मैंने, वन माइनस पी, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा।
फिर क्या करोगे सर? ठीक है, चलते हैं। सी इक्वल टू माइनस वाई लॉग ऑफ, एक बात बताइए, लॉग ऑफ 1/b, इसको मैं पावर में ले लेता हूँ यार, इसको मैं पावर लेता हूँ, 1 + e⁻⁻⁻y⁻1 ऐसा कर देता हूँ यार, क्या टेंशन है, इसको कर दो ना, 1 ये है तो उसको ऊपर ले जाओ एंड टेक द पावर -1, और इसको करो -1 - y, है ना, ये लॉ, ये अपन अभी देखते हैं, और ये है 1/1 + e⁻⁻y, तो एलसीएम लो यहाँ पे, we have to take the LCM, तो 1 + e⁻⁻y विल कम हियर -1, तो ये हो जाएगा विद एलसीएम, इट विल बिकम e⁻⁻y अपॉन 1 + e⁻⁻y, ये बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। c इक्वल टू, अब ये लॉग ऑफ a⁻b होता है, ये पावर को उठा के आगे करो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है, तो ये -1 को आगे फ्रंट, सो -1 एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इंटू लॉग ऑफ 1 + e⁻⁻y, एंड थोड़ा सा और आई थिंक सॉल्व कर लेना चाहिए। डू वी हैव टू सॉल्व अहेड? हाँ ठीक है, अरे यार लॉग तो छूट ही गया, ये लॉग करो ना यार, लॉग था, एंड लॉग ऑफ a/b इज log a माइनस log b, ये पढ़े हम, तो हियर -1 - y, ये ऐसे लिखा रहने दो, इन ब्रैकेट लॉग ऑफ a/b, तो ये होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, है ना, लॉग a माइनस log b होता है ये, ओके, लॉग a माइनस log b, ठीक है, ये करा। अब फिर क्या करना है भाई? सो कीप, इस टर्म को ऐसे लिखे रहने दो, जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली, ओके, so c equal to y log of 1 + e⁻⁻y माइनस है, ओके, एंड डू वन थिंग, ये 1 को मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है, ये माइनस है, 1 को मल्टीप्लाई करो अंदर, सो इट विल रिमेन लाइक दिस, log of e⁻⁻y and minus of log of 1 + e⁻⁻y, ओके, ये ऐसा ही रहा, एंड मल्टीप्लाई y को भी मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो भाई बाहर एक माइनस, यहां पर एक माइनस, ओवरऑल हो गया प्लस, ओके, प्लस हो गया, सो इट विल बी प्लस y log of e⁻⁻y, एंड यहाँ माइनस है तो इट विल बी -y log ऑफ 1 + e⁻⁻y, ये हो गया। अब देखते हैं, अभी मेरे को लगा ये सी हियर, ये हो गया, एंड वी कैन गेट these टर्म्स, y log of 1 की पावर e⁻⁻y and -y of log of e⁻⁻y, I think these two terms should cancel, ये निपटना चाहिए, ठीक है, दे शुड बी कैंसल्ड, ओके, सो करेक्ट करना मुझे, है ना, कहीं आप देखते जाइए ध्यान से, आई एम फॉलोइंग द करेक्ट स्टेप्स और नॉट, ठीक, तो 1 - y was here and I multiplied inside the bracket, okay, I'm just simply solving these things and applying the log property, अभी कहीं कोई differentiation I haven't applied, just simply I'm solving these equations, okay, and these two get cancelled off here, and I'm left with log of e⁻⁻y, ये देखो, अब आई एम लेफ्ट विथ c इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ e⁻⁻y, फिर ये माइनस माइनस था तो माइनस हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1 + e⁻⁻y, ओके, ये हो गया, ठीक है, प्लस प्लस ये बचा सिर्फ लास्ट y log ऑफ e⁻⁻y, y log ऑफ e⁻⁻y, ये बचा,
तो भाई एक काम करें, ये log टू द बेस ई तो वैसे ही था, log टू द बेस ई, ई ये माइनस वाई अगेन पावर में आगे आ जाएगा, सो इट विल बिकम सी इक्वल टू वाई, वाई आगे, एंड दिस विल बी log e is 1. ओके, सो इट्स ओवर, प्लस प्लस इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इट विल बी log ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई, ये यही रहेगा, you can't do anything. Okay, and plus this is y into log of e again. ये क्या है, ये y नहीं है, ये तो प्लस साइन था, ठीक है, इट इज अ प्लस साइन, y नहीं है वो, y है कि नहीं है, y है, ओके हाँ y है, y है, सो log of e की पावर माइनस वाई. Okay, so what can be done here? The minus y should come in front, ये यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट में, y log of e की पावर माइनस y है तो y should come in front, so it will be y into y, that will be y square, और माइनस साइन अलग आ जाएगा. Okay, so this will be minus y square, log e is over, ये हो गया minus y square. So I am getting the cost function as like this, ये इतना सॉल्व कर पाया हमें, and let me rewrite the cost function. The cost function I am getting here is the cost function which I am getting here is c equal to y minus y square plus log of e की पावर माइनस y, ठीक है, y minus y square plus log of 1 plus e की पावर minus y. This is the cost function which I'm getting. Okay, तो अभी खेल थोड़ी ना खत्म हुआ, तो शुरू ही नहीं हुआ था खेल. सो फार व्हाट आई डिड ना, सिंपल मैथ्स यही करा है मैंने, और उसको वेरीफाई करिएगा, आपके सामने कर रहा हूं, सोना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये वॉट एवर बी द सिंपल थिंग्स विच आई डिड. Okay, I put the value of p, and then okay, uh, I did perform some calculation, so you have to be attentive and ping me कि सर वो वाले स्टेप में ऐसा छूट गया कुछ, ठीक है. So this is what the maths I did so far, and I got the value of cost function as y plus log of this thing, ठीक है, ये आया. तो भाई अभी तो y के वैल्यू पुट करना है, y इक्वल टू a0 प्लस a1x, अभी तो ये पुट करना बच गई है, ठीक है, तो पुट करिए अब. सो c इक्वल टू y इज a0 प्लस a1x माइनस y स्क्वायर यानी a0 प्लस a1x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस log ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस a0 प्लस a1x, ये है. तो भाई a0 और a1 ही तो कोएफिशिएंट हैं, a0 and a1 are the coefficients, and I need to differentiate this c with respect to a0 and a1. ये काम करना है, ठीक है. अब एक काम करते हैं, a0 a1 थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, मैं उसको w और b लिख देता हूं. ओके, लेट्स रीसब्स्टिट्यूट. सो c इक्वल टू a0 को लिखता हूं b प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस b प्लस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस e माइनस b0 प्लस डब्ल्यू एक्स. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, है ना, ये लिख दिया मैंने, वो कन्वर्ट कर दिया उसको. ये है मेरा c कॉस्ट फंक्शन. नाउ गेट स्टार्ट विद द पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड यू हैव टू पिक वन कोएफिशिएंट एट अ टाइम. यानी पहला मैं डिफरेंशिएशन करता हूं b के साथ, चलो b के साथ करते हैं. तो डेल्टा c बाय डेल्टा b, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू c, ये करते हैं. तो चलो आगे बढ़ाओ कहानी. डिफरेंशिएट दिस थिंग. सो डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू b, ये हो गया 1. अब भाई डिफरेंशिएशन ऑफ w और x
तो भाई डब्ल्यू और एक्स तो कांस्टेंट है, तो खत्म, निपट गए वो, जीरो। आगे बढ़ो। बी प्लस डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस लगा हुआ है सामने, ये माइनस है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो टू विल कम इन फ्रंट एंड इट विल बिकम बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा। पावर आ गया ना, तो बी प्लस डब्ल्यू एक्स हो गया। एंड फिर अब ब्रैकेट के अंदर जाओ, कम इन साइड द ब्रैकेट, एंड देन बी का डिफरेंशिएशन हो गया वन, डब्ल्यू एक्स तो वैसे ही नहीं पड़ गया, तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, बस खत्म, इतना ही आया, टू इंटू बी प्लस डब्ल्यू एक्स। अब यहां पर आ जाओ, प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन करो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। तो लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर बी जीरो प्लस बी वन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन वन प्लस ई की पावर बी जीरो प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हो गया। पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, लॉग के बाद भाई मैं अंदर गया, इनसाइड इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो पहले लॉग का करा वन अपॉन डॉट, अब इनसाइड गए, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एंड ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, बट हियर आई एम हैविंग माइनस, माइनस है मेरे पास, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो आई विल बी गेटिंग माइनस वन ई की पावर माइनस बी जीरो प्लस डब्ल्यू एक्स, बी जीरो प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हुआ। तभी पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ई की पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, देन आई नीड टू गो टू डिफरेंशिएट पावर ऑल्सो, इसको भी करना है, इसको भी करिए। तो बी का डिफरेंशिएशन हो गया वन, डब्ल्यू एक्स का जीरो हो गया, तो कुछ नहीं मिला मुझे, नथिंग, आई हैवंट गॉट एनीथिंग, तो बस इतना ही आया बी, इतना ही आया है आंसर अभी। तो इसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा बी इज इक्वल टू वन माइनस टू बी प्लस डब्ल्यू एक्स, एंड ये क्या हो गया है मेरा, माइनस है ना, ये माइनस है, ये इसके कारण ये माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। सो आई विल बी गेटिंग माइनस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये आ गया। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। व्हाट एल्स आई कैन डू हियर, what else can be performed in this particular case? क्या लग रहा है, ये मेरा डेल्टा सी बाय डेल्टा बी आ रहा है ऐसा, कैन आई टेक दिस थिंग, ये वन के साथ में मर्ज कर सकता हूँ इस टर्म को विद वन एंड दिस टर्म, तो कैन आई हैव फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन, तो चलो मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं। सो डेल्टा डेल्टा सी बाय डेल्टा बी इज इक्वल टू, आई एम मर्जिंग दिस थिंग, ठीक है। तो ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ, तो आई विल बी गेटिंग वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हो गया, ठीक है। इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, तो वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ओके। एंड ये तो पहले से ही था, ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये पहले से ही था, तो माइनस ऑफ बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये था पहले से ही, डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये रहा, ठीक। और क्या बचा मेरे पास, ये वाली टर्म बस, माइनस टू बी प्लस डब्ल्यू एक्स, माइनस टू बी प्लस प्लस डब्ल्यू एक्स, तो भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आई एम गेटिंग व्हाट, डेल्टा सी बाय डेल्टा बी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस टू माइनस टू बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये बचा मेरे पास, ओके। और ये मेरा मेरा जो टर्म है, ये क्या है, ये पी ही तो है, ये प्रोबेबिलिटी तो है, ये दिस इज पी ओनली। एंड व्हाट इज बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये वाई है, ये वाई है,
है ना? बी प्लस डब्ल्यू एक्स वाई है और ये पी है। तो मुझे मिल रहा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस टू वाई, पी माइनस टू वाई, ये मिल रहा है मेरे को। आप जरा ध्यान देना इस पे। ये मेरी प्रोबेबिलिटी तो है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये थी प्रोबेबिलिटी। एंड बी प्लस डब्ल्यू एक्स इज वाई, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, पी माइनस टू वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बी। इतना मैं सिंप्लीफाई कर गया अभी तक। ओके, आई आई नो दैट ये मैथ्स है, मैथ्स तो पढ़ाई थी और पढ़ाई मैथ्स ही लगेगी मशीन इतना, और ये कहीं डेरिवेशन मिलने मिलने वाला नहीं है, अब तो करना ही है हमको। ठीक है, और आपके सामने लाइव कर रहा हूं मैं मैथ्स। ठीक। एंड अब हाउ आई डिड अप्रोच्ड द प्रॉब्लम, हाउ आई डिड अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर, that this is the cost function, that is a cross entropy, that was a cross entropy। ठीक है, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ पी हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ पी रखा, ये था। एंड देन इन दिस पर्टिकुलर शीट, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर रहा था। ओके, ये वैल्यू ऑफ पी आई पुट, दैट इज वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, ये पुट करा, दोनों जगह पुट करा, एलसीएम वगैरह लिया। ठीक है, एंड देन इसको मैं ऊपर ले गया, माइनस वन करा, एंड ऑल दिस थिंग्स ना आई डिड। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आई डिड। ओके, एंड देन यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट से, एंड ये कैंसल ऑफ हो गया। ओके, सो ये मुझे इतना मिला। डिफरेंशिएशन भी कर लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन आई डिड, एंड फाइनली गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा बी पी माइनस टू वाई, ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब अरे भाई ये तो बी, अभी तो सिर्फ बी का डिफरेंशिएशन हुआ था पार्शियल, डब्ल्यू का कौन करेगा? स्टिल वी आर नॉट। ओके, अभी तो उसको स्टार मार्क करके रखो, एक तो मिला। नाउ अगेन गेट बैक टू द सेम इक्वेशन, कौन सी थी वो? ये रही, दिस वाज द कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन, है ना? y प्लस लॉग ऑफ, ये थी। वापस से आओ जरा इस पे। ठीक है, सो द कॉस्ट फंक्शन इज अगेन c इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ, क्या बोल रहा है ये, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर माइनस वाई, ये बोल रहा है। ये कॉस फंक्शन है। वाई का वैल्यू यू सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, दैट इज बी प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर माइनस, ये कहानी यहां पर लिख दो, बी प्लस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। So I will be doing delta C by delta W is equal to, भैया B का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू W जीरो, ये गया, ये निपट गया। यहां पर X कांस्टेंट है तो X बाहर आया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ W इज वन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ W इज वन, तो हियर आई एम गेटिंग ओनली X माइनस, अब ये करो, तो पहले भैया पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो टू विल कम इन फ्रंट, तो टू बी प्लस डब्ल्यू एक्स, और अब अंदर डिफरेंशिएशन करो, तो बी गया, ये डब्ल्यू हो गया, डिफरेंशिएट, मेरे को मिला एक्स, एक्स इतना मिला, तो इसका भी डिफरेंशिएशन पार्शियल खत्म हुआ। अब अंदर आ जाओ, लॉग वाले को लगाते हैं ठिकाने। ठीक है, प्लस लॉग का, लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर जो था, तो लॉग पहले, फर्स्ट द लॉग डिफरेंशिएशन, सो लॉग डिफरेंशिएशन इज वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, तो पहले लॉग का हुआ, लॉग के बाद फिर आई विल गो इनसाइड, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ई की पावर माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन भैया ये हो जाएगा वही, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, यही हो जाएगा। अब फिर मैं पावर का डिफरेंशिएशन करने गया, पावर का डिफरेंशिएशन करने गया, पावर का डिफरेंशिएशन करने गए हैं, इट विल बी बी प्लस डब्ल्यू एक्स में फिर से मुझे मिलेगा, इट विल बी माइनस, इट विल बी माइनस एक्स, ये मिलेगा मुझे माइनस एक्स। क्यों?
क्योंकि भाई ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। और फिर मुझे अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है अलग से अंदर, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -1, तो ये अलग से कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो तभी मैंने बोला था कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो ये मिला मुझे -x। कहीं हमने पिछले वाले में ये -1 का लफड़ा तो नहीं कर दिया? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये आया था पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था 1/e की पावर माइनस ये हुआ था, फिर मैं अंदर ब्रैकेट के गया था, तो e की पावर, तो ये माइनस था, -1 था, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स आता, ये हुआ। फिर डॉट करके आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, ये पावर वाली टर्म करनी थी, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 और आना चाहिए था, कहीं शायद अपन ने मिस कर दिया है -1। ठीक है, इसको चेकआउट करिएगा, तभी मैंने बोला था अलर्ट रहना। अभी तो खैर मैं इंडिविजुअली आई एम राइट नाउ डीलिंग विद दिस थिंग, इसको कर रहा हूँ, डब्ल्यू वाले को कर रहा हूँ पार्सल, उसको फिर से वेरीफाई करेंगे अपन। तो ये अभी मेरे पास टर्म आया है। ओके, देन क्या करना है मुझे? व्हाट्स नेक्स्ट? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये रहा, मैं क्योंकि अभी मर्ज वर्ज करूंगा इसको, ठीक है, तो अभी ये लिखिए x-2 बी प्लस डब्ल्यू एक्स, इसी को ऐसा लिखा रहने दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स, एंड ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन टेक द कॉम्बिनेशन, ये एक्स का एक्स वाला टर्म और ये वाला टर्म का कॉम्बिनेशन ले लो आप, टेक द कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये नीचे वाला क्या है? 1 प्लस है, 1 है ना, 1 प्लस ई की पावर, ठीक है। अब करो इसका कॉम्बिनेशन, तो एलसीएम लीजिए, तो ये जो नीचे वाला इससे एक्स से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी एक्स, एंड फिर ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय, ओके ये भी तो एक टर्म बच गई, तो ये अभी पूरा नीचे वाला इससे एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, देन प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये आया, नीचे डिवाइडेड बाय कंप्लीट 1 प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये आया, एंड प्लस साथ में ये वाली टर्म और आएगी, -2 बी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये वाली टर्म और आएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा ये दोनों, तो मुझे लग रहा है कि पावर के अंदर वो तो सही लिखा था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर -x नहीं आना चाहिए, ई की पावर -x का हो गया था, ये +x ही होना चाहिए। ठीक है, ये +x ही होना चाहिए, दिस इज +x, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा -x। ठीक है, वो +x ही है, यहाँ पर माइनस करिए, तब जाकर ये दोनों कैंसल ऑफ हो जाएंगे, और जब ये कैंसल ऑफ हो जाएंगे, सो इट विल बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, एंड आई एम गेटिंग x अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 b प्लस डब्ल्यू एक्स -2 b प्लस डब्ल्यू एक्स, तो इसको सेपरेट कर दो जरा, इट कैन बी रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस बी प्लस डब्ल्यू एक्स -2 b प्लस डब्ल्यू एक्स, ये पूरा की पूरा हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा x इंटू पी, और ये हो जाएगा y, तो -2y, एक्स पी -2y या पी एक्स -2y, ये मेरे पास कुछ ऐसा जो है रिजल्ट आ रहा है, कॉस्ट फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग, ये मुझे मिल रहा है।
आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन तो है नहीं। ओके, देयर इज नो सोल्यूशन। इट इज सेइंग कि ये एक्स यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा जे बाय डेल थीटा, वो ये कह रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद वो कह रहा है ये आ रहा है। तो p माइनस वाई, ये कह रहा है p माइनस वाई और x, ये आ रहा है p माइनस वाई एक्स, ऐसा कुछ बोल रहा है। और 2 इसलिए आया, अच्छा 2 तो आना ही था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने करा था। इट इज गिविंग द रिजल्ट लाइक दिस, p माइनस वाई इंटू एक्स। हमें क्या मिल रहा है? वॉट वी अचीव्ड हियर, वॉट वी हैव अचीव्ड हियर, पी एक्स माइनस टू वाई, ये हमें मिल रहा है, पी एक्स माइनस टू वाई। और यदि मैं ए यदि मैं शुरुआत से ही ये जो ये थी इक्वेशन, ये इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता ना, तो शायद कुछ बात बन जाती। इसको होल स्क्वायर नहीं करा मैं, डायरेक्ट पावर का डिफरेंशिएशन करके और ये सब करा। ठीक है, ये करा है। तो अभी खैर हम बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए। पी एक्स माइनस टू वाई बोल रहा है ये मेरा वाला। ओके, एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस दे आर सेइंग p माइनस वाई इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस वाई एक्स, ऐसा करके कुछ बोल रहा, पी एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है, डायरेक्टली ये तो भाई डायरेक्टली लिख दिया इसने कुछ सॉल्व नहीं करा है आपके लिए। सॉल्व तो मैं करके लाया आपके लिए। ओके, एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस थिंग। ओके, कि ये आपका कॉस्ट फंक्शन था। अगेन मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये आपका कॉस्ट फंक्शन था, ये आपका वैल्यूज था, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू हियर। आई कंप्लीटली सॉल्व्ड फॉर द सी व्हाट इट शुड कम, ये मुझे मिल रहा था आते हुए। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। यहां भी आपको एक क्रॉस चेक करना है वेदर इट इज बीन, मतलब सही कर रहे हैं हम। आपको अटेंटिव रहते हुए मैं पूरा कर चुका हूं, बट यू हैव टू बी अटेंटिव दैट व्हाट आई डिड इज करेक्ट और नॉट। मैथ्स में करते जा रहा था आपके सामने पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो ऐसा करके मुझे कुछ मिला। ओके, एंड देन लेटर ऑन आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वाई हियर। आफ्टर डूइंग दिस थिंग आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, वाई जो कि ये है उसमें इक्वेशन में मैंने पुटअप करा पूरा। ठीक है, हियर आई पुटेड द वैल्यू ऑफ वाई, देन रिप्लेस करा a0 a1 को भी b और w से, आई डिड द रिप्लेसमेंट। ओके, एंड पूरा फिर उसको डिफरेंशिएट करा। आई परफॉर्म द पार्शियल डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा मिक्सअप करा, इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी, इट्स नॉट दैट मच टफ। इसको पूरा सॉल्व करा बाय डूइंग द डिफरेंशिएशन, टेकिंग द एलसीएम एंड ऑल दिस थिंग्स से करते हुए आई गॉट, ऐसा करके मुझे कुछ मिला। ओके, दिस इज व्हाट आई गॉट। ये बायस का था, डेल्टा सी बाय डेल्टा बी। सिमिलरली मैंने वापस से वही वाला इक्वेशन पिकअप करा और उसको फिर डब्ल्यू से पार्शियल डिफरेंशिएट करा। ओके, एंड फाइनली आई गॉट दिस थिंग, मुझे ये मिला पी एक्स माइनस टू वाई, ये मिला। ओके, सो ऐसा करके कुछ डेरिवेशन होगा कॉस्ट फंक्शन का, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा। ऑलराइट, सो द थिंग इज, आप क्रॉस चेक करिए, इसे वेरीफाई करिए। मैं आपको फिर से लिख कर दे देता हूं व्हाट वी हैव टू सॉल्व। ओके, अगेन आई एम टेलिंग क्या सॉल्व करना है, ये चीज सॉल्व करनी है। देखो फिर से लिख के दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट। ओके, सो माई इक्वेशन विल बी फॉर द कॉस्ट फंक्शन, इट इज, आप चाहो तो नोट भी कर लीजिए, c इक्वल टू वाई माइनस वाई लॉग ऑफ p माइनस ऑफ वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस p। ये आपकी इक्वेशन है। ओके, दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज, एंड योर p इज वन अपॉन वन प्लस e की पावर माइनस माइनस a0 प्लस a1x। ये है आपकी इक्वेशन, p की वैल्यू। दिस इज व्हाट द p वैल्यू इज। बस इतनी दोनों चीजें लिख के रखिए आप अपने पास, पुटअप करिए, पूरा सॉल्व करिए लॉग वॉग, बाद में फिर
ठीक है, बाद में फिर आप जो है डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू A0 एंड विद रिस्पेक्ट टू A1। यही हमारा कॉस्ट फंक्शन है। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल अगेन वेरीफाई दिस थिंग। ओके, हमने पूरा डेरिवेशन करा, आपको सामने लिख के दे दिया मैंने, इसको करना है। ठीक है, ट्राई टू डू द हैंड्स आउट। मैंने आपके सामने पूरा एक वो बना दिया, लेआउट तैयार कर दिया, आपको कंप्लीट विजन दे दिया कि दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट फॉर द कॉस्ट फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये करिए इसको, और देन यू कम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल again have a discussion related to it. ठीक है, anything you want to say here, please let me know. Please let me सर, know. Yes, yes, please say. सर वो डिफरेंशिएशन करने से पहले वाले स्टेप पे जा सकते हैं एक बार? डिफरेंशिएशन के पहला वाला स्टेप, ओके, सो द ये था, बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन आई एम गेटिंग दिस वैल्यू y प्लस log ऑफ 1 माइनस e की पावर y माइनस y, इज इट करेक्ट और नॉट? बिकॉज इसी के आगे डिफरेंशिएशन हुआ है अब। हाँ, इसके ऊपर सर, इसके ये ऊपर देखिए, ये रहा। और ऊपर थोड़ा, ओके, अ, थोड़ा और ऊपर। ओके, वो हमने जो इनवर्स सेकंड सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है। हम्म, हम्म, हाँ, यहाँ पे जो सेकंड वाली लाइन लिखी है, हम्म, वाई वाई लॉग, हाँ ये वाली, वो इनवर्स कहाँ गया सर? इनवर्स कौन सा वाला? ये 1 अपॉन था ना, ये वन अच्छा अपॉन हाँ। तो इसको मैंने 1 प्लस e की पावर -1 कर दिया। हाँ सर, फिर इसके और बाद ये इनवर्स कहाँ गया ये नीचे यहाँ? -1 जो था वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग ऑफ a की पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। ये होती है प्रॉपर्टी लॉग की। तो वो आगे ले गया, ओके, मैं -1 आगे ले गया मैं, तो -1 आगे लेने के बाद वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, दैट्स ओके, व्हाट आई डिड, ये करा मैंने। ओके। तभी मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा अभी ठीक है, लाइव क्लास में आपने जो देखा इससे ये तैयार हो गया कि सर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इक्वेशन। ये आपके सामने, दिस इज द इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू। काइंडली डू सॉल्व दिस इक्वेशन। जी सर। Okay, I request everyone to kindly go for this equation. Okay, ठीक है, fine. Okay, let me stop presenting.